Hello everyone, welcome back to my channel. Yeah. Finally I'm making one again video. I mean, if you know me, hi, and if you don't, no problem. Hi, my name is Soumya and I make fashion, beauty, a lot of videos actually. So actually it's been a lot that I'm not making any videos. I know I told last time that I'm gonna make a lot of videos, that I'm not doing it. I'm gonna not brag about that I was busy and stuff, because everybody is busy, I know. So yeah, so maybe I was busy. Still no problem, we will do videos. Like I said, like in my first videos, that I'm not gonna take a lot of प्रेशर दैट आई एम गोना डू वीडियोज नहीं, ऐसा नहीं होता है. जब I'll be good, I'll be like in the good state of mind that I'm gonna make a video today. So today I'm in that mood. So that's why I'm making this video. And बहुत सारे चीज़ें that I need to talk about, and I feel that if I'll talk about it here, then I'll feel more good about it, because you know stuff that you're not gonna feel good about it if you will talk to other people. So I don't know, I just felt like say it here. And at the same time, I'm not gonna bore you guys, so I'm gonna do a very basic makeup because I need to go somewhere today, like somewhere. So yeah, let's do that and let's chit chat a bit, and I will tell you a lot of stuff that is happening right now with my life. I know everybody is not interested, or not everybody, some of you is not interested. Otherwise, people are interested. I mean, of course, let's believe it or not, but people do like other people' life. I don't know, maybe I just say it like that, but let's do this. Let's talk and let's talk about my life. So what's happening, right? I mean, if you haven't watched my Miss Odisha Queen video yet, then I think you don't know that I own Miss Queen of Odisha. Yeah, so it actually happened very naturally to me, because I got a call कि ऐसे कुछ हो रहा है, and are you interested in that? So I said, yeah, of course, why I'm not interested. If something is coming to me, then it's actually quite good, then it's gonna happen in my life. So I said yes to them, and I was totally prepared for that. I was preparing actually dance and stuff, everything. Then वहाँ पे मैं गई, और yeah, I won it. Of course, I'm the queen of Odisha now. Okay, so that was that. Actually, ये मेरे लिए बहुत ही unexpected था, because I'll tell you what happened. This offer came to me when I was in, no, not I was in the month of, I think, September last or something, after my birthday and stuff. So it should be completed by, they told me, by October 30. The grand finale was on October 30. Oh no, it came to me on October itself. Okay, in a 1 month. Okay, so I was very panicked, because मुझे हर एक चीज़, जैसे कि सबको, I don't know सबको पता होगा, लेकिन मेरे जितने क्लोज वंस है, they know me very well, कि मुझे ना सब कुछ बहुत प्लानिंग के हिसाब से चाहिए. मतलब मुझे ये, इसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये पहनना है. सो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मुझे अभी कपड़े खरीदने पड़ेंगे. आई नीड टू लुक गुड, ऑफ कोर्स. So I brought a lot of clothes from Urbanik and I tried them on, and luckily it was good. नहीं तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहता है. So that was good. I managed to go there, and 2 दिन 3 दिन चल रहा था. टैलेंट राउंड हुआ, फिर ग्रूमिंग सेशंस हुए, फिर रिहर्सल्स हुए, फिर ग्रैंड फिनाले हुआ, फिर क्राउनिंग हुआ, एंड yeah. I own it. So of course, I was very happy. I mean, I was really very happy. So in between that, actually what happened, I think, ये तो हमेशा, मतलब ये बाद में हुआ, मतलब होने के बाद आई गॉट दैट दिवाली थिंग एंड स्टफ. बट उसके पहले मेरे घर पे बहुत एक बुरा चीज़ हुआ. आई मीन, शायद एक ही वीक था
एक ही वीक बचा हुआ था एंड मेरी मम्मा एक्चुअली रोड पे चल के जा रही थी एंड दो लोग आए एंड उनके जो नेकलेसेस थे, जो मंगलसूत्र था, चेन्स पहने हुए थे उन्होंने, क्योंकि वो पहले एक शादी से ही जाके आई हुई थी। सो उन्होंने उसको चोरी कर लिया। मतलब ऐसा है कि उन्होंने इसे खींचा और वो चले गए। एंड मेरे घर पे ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब माय फैमिली, हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं। मतलब हम लोगों को लगा भी नहीं था कि ऐसा कभी होने वाला है। इसलिए क्या होता है ना कि हमको लगा नहीं था, इन द सेंस ऑफकोर्स किसी को नहीं लगा होता है, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि हाँ, सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ऐसा होने वाला है और उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन माई मम्मा वॉज एक्चुअली वेरी क्यूट। आई मीन शी इज़ वेरी नॉर्मल। सो उनको मतलब समझ ही नहीं आया वो क्या करते उस टाइम पे। माई ब्रदर वॉज हियर, मतलब मेरा भाई, मैं, हम सब घर पे थे एंड मेरी मम्मा ऐसे ही थोड़ी यहाँ पे ही जा रही थी। मतलब मेरे घर से 2-3 दूर का घर मतलब है, वहाँ पे जा रही थी एंड दैट हैपेंड। एंड वहाँ पे 1 वीक ही बचा हुआ था। I don't know what to put. Oh, okay. I'm sorry. So what happened exactly that एक वीक ही बचा हुआ था एंड ये सब चीज़ें हुई, तो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट एंड आई वाज लाइक व्हाट आई एम गोना डू नाउ, बिकॉज मैं अपने मम्मा को ही लेके जाने वाली थी एंड द पॉइंट इज दैट घर पे वो भी बात नहीं है, पता है, जाने वाला। द पॉइंट इज घर पे इतना अजीब सा माहौल बैठ गया था कि ऐसा हुआ हम लोगों के साथ एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। और जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब एक सोने का चोरी हो जाना। और मेरे मम्मा का प्रॉब्लम ये था, मतलब उनको इस चीज़ का ज़्यादा बॉदर कर रही थी कि बात ये थर्सडे को ही हुआ था एंड शी वॉज टोटली डिवास्टेटेड। मतलब हमारे घर पे आई थिंक हम 2-3 दिन तक वी वर सो टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि क्या करे, किसी को नींद अच्छे से नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है एंड सबको यही पूछ रहा है क्या हो गया क्या हो गया। और आपके अगल बगल जब लोग ज़्यादा इस बारे में बात करते हैं तो आपको और ज़्यादा इरिटेशन होता है। माने नहीं माने यही होता है। आई नो लोगों के इंटेंशंस अच्छे थे ये पूछने के लिए कि क्या हुआ तुम्हारे साथ एंड स्टफ, लेकिन उस टाइम पे नहीं उतना होता। ओके, वट एवर दैट वन। सो क्या हुआ ना, जब ये बात हुई तो हम लोग उसके बाद ही बात सारी जगह के सीसीटीवी फुटेजेस देखे एंड हम लोग को कुछ चीज़ें पता चली कि वो लोग ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे हुआ था एंड दैट स्टफ। एंड पता नहीं ये कैसा चीज़ है, वहाँ पे जो मम्मा ने बताया दैट कि ऐसे उन्होंने लोगों ने चोरी वगैरह कर लिया है। Oh my god, I look like I got pimple. Okay, let me blend this out. So क्या हुआ ना कि वहाँ पे लोगों को जो पता चला कि ऐसा चीज़ हुआ है, कोई कुछ भी नहीं किया। दैट आई मीन वो ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग चीज़ था कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ऐसा हुआ है एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आई मीन हाँ, लोगों को भी इंस्टिंक्ट वहाँ पे सडनली काम नहीं किया होगा। आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी ऑल्सो, बट स्टिल आई फील रियली बैड, क्योंकि जब हम लोग कैमरा में मतलब सीसीटीवी फुटेज वगैरह में देखना चाहते थे, मतलब हम लोग हर जगह गए एंड चेक किया, तो मैंने देखा कि जब ये चोरी हो चुकी थी, माई मदर वॉज एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई फील रियली बैड। शी वॉज एक्चुअली रनिंग टुवर्ड्स माई होम। मतलब वो ये बताने के लिए दौड़ रही थी मेरे घर पे कि दिस हैपेंड। दो उनके पास मोबाइल फ़ोन था, शी कुड हैव कॉल्ड, बट वहाँ जैसे कि आई सेड वहाँ पे आपके दिमाग नहीं काम करता उतना। एंड मैंने जब उनको देखा इन दैट कैमरा, आई सॉ हर इन रियल, आई फेल्ट रियली रियली बैड। आई वॉज लाइक कि उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि ऐसा हुआ। एंड द पॉइंट इज शी इज़ वेरी स्मार्ट। उन्होंने फाइट बैक नहीं किया क्योंकि ये बेटर है, पता है, कि उन्होंने फाइट बैक वगैरह नहीं किया। अगर वो फाइट बैक करती और फिर खुदा ना खास्ता समथिंग वुड हैव हैपन, तो फिर डिड आई पुट माई प्राइमर? नो आई डिडंट, राइट? शिट, ओह गॉड, लेट्स मैनेज दिस आउट। सो क्या एग्जैक्टली हुआ ना कि अगर वो वहाँ पे कुछ हाथापाई करती एंड आजकल के चोर यू डोंट नो येट, सो राइट। सो अगर उन्होंने उनको कहीं पे धक्का दे दिया होता या फिर उनको पीट लिया होता, जैसे कि उसके 4-5 दिन बाद ऐसा चीज़ हुआ मेरे शहर में इधर,
तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा पूरी होती। आई नो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि अरे आपने कुछ किया नहीं, एंड वी वर ग्लैड कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर वो करती तो पता नहीं क्या हो जाता, यू नेवर नो। जो चीज़ होना होता है वो तो हो ही जाता है, तो आप उसको तो रोक ही नहीं सकते। तो दैट हैपेंड। तो मेरे घर पे से थोड़ा अजीब सा माहौल हो गया था, एंड वी फेल्ट बैड ऑल्सो बिकॉज पता ही नहीं चल रहा था कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ दिन तक होप था कि मे बी मिल जाए, नहीं मिले, आई डोंट नो। तो फिर सबने बोला कि नहीं यहाँ पे तो नहीं होता, ये लोग नहीं करेंगे कुछ। जैसे कि पुलिस केस हुआ तो उन लोगों ने पूछा कि कितना हुआ, बिल लाओ, ये लाओ। तो हम लोग रियलाइज ही नहीं किए थे कि कितना रुपए का हो गया था। तो when we realized it was a lot, like it was almost 1.575 lakhs, and we are like shit, I mean what happened with us? So वहाँ पे मुझे ऐसे मोमेंट पे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। इस मोमेंट पे मैं जाके वहाँ पे क्या करूँगी जब मेरा फैमिली इधर उतने अच्छे कंडीशन में नहीं है। बट माई फादर एंड माई मदर वॉज एक्चुअली नो, ये होता रहेगा, ऐसा हो गया मतलब लाइफ बंद हो जाएगा क्या। दे टोल्ड मी अ लॉट ऑफ स्टफ। उन्होंने बैठ के मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होता है, यू शुड गो, दे कॉल्ड यू, इट मीन्स यू हैव दैट पोटेंशियल। I mean, in that case, I got a good parents, to be honest. I'm very glad that I got that kind of parents. So, फिर हम निकल गए, भाई भी चला गया था उस टाइम पे, my father was alone. So इसलिए और ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि उनको ये सब चीज़ों पे नहीं आना था. He wanted to take some time. I know, like, things happen for a reason, but like I said, if you know, like the people who are watching, if they are middle class family, they would have known कि ये कितना बड़ा चीज़ होता है एक फैमिली के लिए. देन हम लोग वहाँ पे गए एंड वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे. हम लोग वहाँ पे गए एंड मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मम्मा का ध्यान हमेशा इधर ही रहे, ऐसा नहीं हो कि अरे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था. वी डिड दैट. और हम लोग जब आए, अब जब मैं जीत गई, शायद सब कुछ ऐसा हुआ कि सब कोई भूल ही गया कि थिंग हैपेंड एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ इफ दैट हैपेंड. एंड सब हमारे घर में सब ऐसे ही कि जो होता है अच्छाई के लिए होता है. बट जैसे भी जो भी बोला जाए, चोरी हो चुकी थी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे. उस टाइम का सिचुएशन मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा बुरा था. दो अभी लोग पकड़े गए हैं. हम लोग का चीज़ नहीं मिला है जो हम लोग का चोरी हो गया था, बट जिन लोगों ने चोरी किया था वो लोग पकड़े गए हैं. मम्मा को बुलाया गया था इंस्पेक्शन करने के लिए कि वो एग्जैक्टली ये लोग है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि वो पीछे वाला वैसे भी मास्क पहना हुआ था ना, आगे वाला हेलमेट पहना हुआ था. लेकिन हम लोग थोड़ा सीसीटीवी में देखे थे एंड थोड़ा सा बहुत कुछ पिक्चर्स थोड़ा बहुत आ चुका था जिससे थोड़ा आइडिया अंदाजा लगा जाए कि हाँ वो दिखता कैसा है. एंड पता चला कि उनका एक टीम है जो कि ये सब कर रहे हैं. मतलब दे हैव अ पर्टिकुलरली टीम कि ये लोग पैसे ऐसे करके मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं. क्योंकि सो क्या हो रहा था ना कि अगले वाले दिन भी एक आंटी के साथ ऐसे हुआ कि वो आंटी फाइट करने लगी उनके साथ. तो उन्होंने उनके एक आँख में मतलब इतना जोर से मारा कि उनको डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ा एक बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका तबीयत बहुत मतलब उनका आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि वो अपना आई साइट भी लूज़ कर सकती थी. सो इसीलिए हम लोग और ज़्यादा थे कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ. यू लाइक वी वेर थैंकफुल, आई वॉज थैंकफुल. And apart from that, like a lot of people know, oh god, there is a lot of powder. I'm not a makeup artist guys, I just do things like that जो कि मेरे ऊपर अच्छा लगता है. पता है मैं किसी के और के ऊपर मेकअप नहीं कर सकती. मैंने ये खुद रियलाइज किया हुआ है. मतलब आई ट्राइड, मतलब अपने मामी के ऊपर या फिर मेरे मम्मा के ऊपर हो जाता है, वो बहुत बेसिक करती हैं, उनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता. लेकिन मैं मामी के ऊपर ट्राई कर रही थी एंड पता है इतना डिजास्टर था. कि ये क्या हो गया मेरे मेकअप स्किल्स को. लेकिन मैं अपने ऊपर बहुत अच्छे से करती हूँ. तो बहुत लोग ये गलतफहमी भी रहती है कि वो अपने ऊपर अच्छे से करती है, हमारे ऊपर नहीं करती. ऐसा नहीं है, मुझे नहीं आता है, मैं अपने ऊपर ही अच्छे से कर सकती हूँ. जैसे कि मैं अभी खुद में ही प्राइमर भूल गई हूँ क्योंकि आई वाज टॉकिंग. मैं ऐसे ही हूँ. मुझे नॉर्मली इतने कॉल्स नहीं आते हैं, लेकिन मुझे अभी कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे थे, तो उसके बीच में मैंने अपने आईब्रोज कर लिए हैं. सो लेट्स मूव टू द आई शैडो बिकॉज
मैं वो फिल्म करना भूल गई क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉल था एंड आई वाज टॉकिंग द पीपल हु नीड्स टू हियर दिस दैट एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, ट्रस्ट मी। सब यही बोलते हैं, आई नो आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होगा सुन के कि अरे आई नो एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, बट व्हेन ऐसा लगता है, आई नो, लेकिन होगा। एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ भाई जाओ। आई नो देयर वाज अ हॉर्न राइट। या घर के मतलब रोड के साइड पे घर होना भी इज अ डिफरेंट थिंग कि आप हमेशा अकेले नहीं रहते हो। टुडे इज अ संडे बाय द वे। कल से फिर ऑफिस। सो गुड। एक्चुअली आई लाइक वॉकिंग, बट जब सामने वाला इंसान इरिटेटिंग हो तब नहीं। तो आई लाइक वॉकिंग। एक्चुअली जब भी मैं ऐसे तरीका का मतलब मैं ऐसे काम करती हूँ ना कि मैं जब भी काम करती हूँ अपना ऑफिस का हो किसी का हो, आई पुट माई ऑल माई what is the meaning of constriction? Concentrate. God, what's wrong with me? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। Concentration. Yeah, right. Concentration. So I put all my concentration at that point. Okay, finally. आपके ऑफिस के प्रॉब्लम्स और अलग होते हैं एंड यू नो हाउ पीपल आर देयर। करेंटली मेरे प्रोजेक्ट में मैं बताना ही नहीं चाहती, इफ समबडी नोज एंड इफ समबडी हैज सीन माय दिस वीडियोस एंड स्टफ दे वुड नो। एंड आई नो मैंने बहुत बार बात भी किया है कुछ लोगों से इस बारे में कि पता नहीं, सब बोलते थे कि अरे बहुत साउथ नॉर्थ होता है, यू डोंट नो, ये होता है वो होता है। और जब मैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट में गई वहाँ पे नहीं होता था एंड दैट वाज एक्चुअली गुड। एंड आई वाज when I was working, I was getting those things, you know, appreciation, achievements, बहुत सारी चीज़ें मिल रहे थे and I was very good in that at that time. But what happened, वो project मेरा collapse हो गया था, कंप्लीटेड हो गया था बेसिकली। तो उनको हमें जल्दी ही बोलना पड़ा कि नहीं 1 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा, यू नीड टू फाइंड अनदर प्रोजेक्ट। और उस टाइम पे आई वाज वेरी न्यू टू आई मीन IT। मैंने एक बहुत ही गंदा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया था गाइज। आई मीन आई कांट टेल यू। अगर पता है तो यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे आपको आपके इंडियन हॉलीडेज नहीं मिलते एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। पीपल विल नॉट टॉक टू यू लाइक यू आर अ पर्सन, they are very bad with words and मैंने ये नोटिस किया कि if you're not from south because that is a very south dominant project, नहीं हो तो आप का कोई राइट नहीं बनता कि आप कहीं पे कुछ बोलो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया एंड आई मीन इन दैट प्रोजेक्ट ओनली आई हैव 2 very loyal friends and those are from south to be honest, and they told me that the certain person called them like the lead and they were, I mean, I don't know if I should talk about it or not, but actually it's a very toxic environment to work, so I'm just saying it to you guys. मैं पहले सोचती थी कि मैं बैंगलोर जाऊंगी, you know, I'll have a great independent life, but I don't think I want it right now in my life more, because मुझे लगता है कि मैं फैमिली के साथ रहूंगी तो I'll be better. अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे भी चल रही है मॉडलिंग के ऊपर, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। आई एम डिनाइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज सब कुछ उसका भी अलग स्टोरी है यार। मतलब सब कोई आपके लिए अच्छा नहीं चाहता और जो भी ऑफर्स आते हैं वो बहुत अच्छे ऑफर्स है, जेन्युइन होते हैं, लेकिन द वे दे टॉक, द वे दे वांट यू टू रिप्लाई टू देम कि जैसे कि वो गॉड है एंड वो आपको ये चीज़ दे रहे हैं एंड आई डोंट थिंक सब करते होंगे, शायद मेरे पास ऐसे बेकार से बकवास से ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन द मनी इज़ गुड एक्चुअली। जैसे कि क्या होना है कि एक मिंत्रा का मेरे पास ऑफर आया था कि आप ट्रेडिशनल करना चाहते हैं या फिर वेस्टर्न करना चाहते हैं। तो ये मेरा पहली बार था तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर ट्रेडिशनल। मैंने वो बंदे को बोला कि भाई आप मुझे ट्रेडिशन में कर लो, हो जाएगा। एंड द मनी वॉज 40,000 फॉर ट्रेडिशन एंड फॉर वेस्टर्न इट वॉज 75। उसमें आपको वो लोग जो चूज करके देंगे यू नीड टू वेयर इट, ऐसा था उनका वो। तो मैंने बोला कि नहीं, पैसे के चक्कर में जल्दी जल्दी में नहीं लेता डिसीजन, सो आई डिसाइडेड टू गो विथ ट्रेडिशनल।
सो मैंने साइन वगैरह किया, मतलब उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेजा तो मैंने उनको साइन वगैरह करके सारे पेपर वर्क हो गया था एंड दे सेंट मी 20,000 रुपीज़ पहले। उन्होंने बोला कि बाकी बाद में दिया जाएगा, एक बार आपके पिक्चर्स हो जाएंगे तो एक बार आपका पिक हो जाएगा 10, फिर आप मतलब एडिटिंग वगैरह हो क्या वन विल पुट इट एंड हम लोग अलग 10,000 दे देंगे। एंड आई वाज गुड विद इट। आई सेड ओके, कहीं से स्टार्ट हो रहा है एंड द मनी इज एक्चुअली गुड। पहले आप जो स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है, इट्स नॉट बैड गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। सो मैं और अपना मेरा एक दोस्त था, सो वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ही हो रहा है भुवनेश्वर में, सो वी कैन डू इट। एंड फिर व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा पिंग करना शुरू कर दिया, उस बंदे ने, मतलब इंस्टाग्राम पे। जैसे कि मैंने उनको अपना व्हाट्सअप नंबर तो दिया था नहीं, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में पिंग करना शुरू कर दिया कि हे हाय। और मैं ऐसी हूँ कि मैं अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट रखना चाहती हूँ। खास करके जैसे आप आ रहे हो कि आपको शूट करना है तो आप शूट करो और भागो, मुझे और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। अगर पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, आई एम टॉकिंग टू, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आई नो दैट पर्सन एंड मुझे पता है वो ऐसा ऐसा नहीं करेगा, सो दैट आई एम टॉकिंग टू दैट। मैंने नहीं किया, मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया एंड ही स्टार्टेड पिंगिंग मी लाइक यू आर वेरी अनोइंग, दिस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स दैट यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी। एंड I just told them like why should I reply you apart from my work? मैं अपने मैनेजर को जाके तो ये नहीं पिंग करी हूँ ना कि हाई यू आर वेरी अनोइंग। आई मीन इट्स सो irritating guys. I mean, as a girl I can say this, it happens with everybody, every girl. I think बॉयज के साथ भी होता होगा, आजकल तो सब हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने फिर बोला कि देखो मैंने उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया कि मैं अपना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग रखना चाहती हूँ, मैं इस अंदर नहीं घुसना चाहती एंड ये वो। देन उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो आना पड़ेगा पहले मिलने के लिए जैसे भी करके। आई सेड आई विल गो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे रखे कि आप किसी को लेके नहीं आ सकते, यू नीड टू कम अलोन। एंड उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर कोई रेस्टोरेंट बुला रहे हो, ये कर रहे हो, तो अकेले जाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ऐसे बुला ही क्यों रहे हो अकेले, पॉइंट क्या है आपका? तो मुझे थोड़ा सा, आई नो सब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा होता रहता है इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बेसिकली उन्होंने फिर मुझे एक ईमेल भेजा एंड बोला कि वी आर प्लानिंग टू नॉट do this thing with you because इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ बेकार सा लिख के भेजे एंड वो किसी और को दे दिया गया। उसका जो है, जिसको मिला, वो चाहती है ये सब करना, मतलब उसका मॉडलिंग ही करियर है, लेकिन मेरा नहीं है। आई हैव अदर थिंग्स टू डू राइट। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने बोला कि हाँ वो ऐसे ही करेंगे, तुमको कॉल करेंगे, बीच बीच में बात करना चाहेंगे एंड यू नीड टू डू इट। इसलिए ये कितना बेकार सा चीज़ है यार कि आपको काम करना है तो आपको ये सब चीज़ भी करना पड़ेगा। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ हुआ। देन आई डिसाइडेड ओके, आई गॉट इट, दिस इज गोना ओनली हैपन। सो मैंने उस ऑफर को भी मना कर दिया। आई फील कि यूट्यूब ही एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे तुम अपना ही कर सकते हो। So I'm almost ready now. Not almost, I'm totally ready and I put my blushes. Oh god, this is the blush patch. I was checking which will go with this look and stuff. So yeah, it's done. This is the makeup look I created when I was talking with you guys. And I'm not a pro at it, but I think I did a very well job with this one, and I didn't put my primer फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो भी मेकअप आर्टिस्ट मुझे देख रहे थे, एंड प्लीज आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू पुट दैट। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी नए मेकअप वीडियोस लाऊं या फिर समथिंग, देन लेट मी नो ऑफ कोर्स। लाइक इफ यू वांट टू सी मी एवरी डे और समथिंग, देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम के आईडीज पहले और लास्ट की वीडियोज में ऑफकोर्स मैंशन कर दूंगी। एंड yeah, if you like it, then follow me on Instagram and in YouTube as well. I will be blessed if you will watch my whole video and keep supporting, keep loving me, because I need your support guys, at least at this moment. So thank you so much for watching this video. I will see you on my next video. Thank you so much for watching me इतने टाइम तक मुझे झेलने के लिए, and yeah, thank you. I will wish that you guys will be good
and your 2023 will be good, of course. And keep manifest that your 2023 will be good. And yeah, bye.